Good morning students, I am Pankaj Mishra, your maths teacher, here again with a new video in maths class. Students, as you all know, in my previous video I have already started this chapter, that is indices. In my last video I have solved some of the questions for you. Some of the questions that are left will be solving today. So let's start with the video. So first question for today is, prove that a plus b to the power minus 1 into a to the power minus 1 plus b to the power minus 1 is equal to 1 upon ab. We have to solve this. So for this what we can do, first we'll change this inverse into positive 1. So minus power minus 1 is, so we'll make it 1 upon a plus b multiply by a inverse is 1 by a, then plus 1 by b. On solving this, we will get a plus b, LCM will be a and b, LCM will be ab, this will be b plus a. This can be cancelled out, so this will be equal to 1 upon ab, that is equal to 1 upon ab. This implies that LHS is equal to RHS. So this is how you will be solving. अगर कोई क्वेश्चन आपको इनवर्स टाइप में दिया हुआ है, फर्स्ट विल मेक इट in positive 1 and then after taking the LCM you can cancel out the terms which can be cancelled out. Now the next question, is if a is equal to c to the power z, problem number 22, if a is equal to c to the power z and b is equal to a to the power x, c is equal to b to the power y, then we have to prove x, y, z is equal to 1. This is the question. अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, फर्स्ट विल टेक वन टर्म, लाइक मैंने यहाँ पे ले लिया a इक्वल टू c टू द पावर z. अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि in place of c I can use b to the power y. So what I have done, I have substituted this value of c in this equation. So c can be written as b to the power y. So this will become b to the power y to the power z. So this will be a equal to b to the power yz. Now in place of b, I can write a to the power x. So this will be a is equal to a to the power x to the power yz. On solving, this will become a equal to a to the power x y z. And here we can write a to the power 1. On comparing what we can get, यहाँ पे a to the power ये है और a to the power x y z. So this will be equal to, ये cancel out हो जाएगा तो x y z will be equal to 1. ऐसे आप लोग कंपेयर कर लेंगे, ठीक है. Now we will move to the next question. बेटा मैं आप लोगों के लिए एक टाइप का क्वेश्चन जरूर करा दे रहा हूँ, so that you can solve the rest of the question. ठीक है, हर क्वेश्चन का एक पैटर्न आपको बता दिया जा रहा है. Next question is 24. If 2 to the power x is equal to 3 to the power y is equal to 6 to the power minus z, prove that 1 upon x plus 1 upon y plus 1 upon z equal to 0. This is your question. We use these term. ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो भी टर्म हमको दी हुई है हम इनको सॉल्व करेंगे. तो वी कैन राइट लेट 2 to the power x equal to 3 to the power y equal to 6 to the power minus z equal to k. Let it be k. So this can be equal to k. So 2 to the power x is equal to k. ठीक है, तो in place of 2 we can write k to the power 1 upon x. In place of 3 to the power y we can write k. So 3 can be written as k to the power 1 by y and 6 to the power minus z. This is equal to k. So this can be written as k to the power minus z 1 by z. ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे 1 अपॉन की टर्म्स में इसको सॉल्व किया है. Now in place of this 6 I can write 2 into 3. This will be k to the power minus 1 by z. Now in place of 2 हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, k की पावर 1 by x. यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ k की पावर 1 by x into
यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ k की पावर 1 बाय वाई इज इक्वल टू k की पावर माइनस 1 बाय जेड। अब यहाँ पे बेस सेम है आपके, तो बेस सेम में हम लोग क्या कर सकते हैं, k की पावर 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन वाई दिस इज इक्वल टू k की पावर माइनस 1 बाय जेड। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लिख रहा होगा कि बेस सेम जो k है वो आपका यहाँ पे 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई है और यहाँ पे k की वैल्यू 1 अपॉन जेड है माइनस में। ऑन कंपेरिजन जब इनको कंपेयर करेंगे तो क्या बच जाएगा, ये 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई दिस विल बी इक्वल टू 1 बाय माइनस 1 बाय जेड। इधर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड दिस विल बी इक्वल टू 0। अगर हम चेक करके देखें प्रूफिंग में हमें क्या करना था, तो यही करना था 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे जिसमें अगर आपको प्रूविंग में स्टार्टिंग में कुछ वैल्यू दी हुई है और आपको प्रूव करना है। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is question number 28. If x is equal to 10 to the power 3 multiplied by 0.0099, y is equal to 10 to the power minus 2 into 110, and what we have to find out, find the value of under root x by y. So what we have to do, we will substitute this value in this. So this will become x की जगह पे यहाँ पे रखिए 10 to the power 3 into 0.0099 divided by 10 to the power minus 2 into 110. जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, अगर हम इसे सॉल्व करें तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 10 to the power 3 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा आपका ये, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 टेंस 100 1000 10,000, तो ये हो जाएगा आपका 99 बाय 10 to the power minus 2 into 110 इंटू यहाँ पे आप लोग 10,000 को लिख सकते हैं 10 की पावर 4। ठीक है, ये हो गया। आप इसको सॉल्व करने के लिए करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 to the power 3 से यहाँ पे 10 बचा, ठीक है, और 11 से इसको काटे तो यहाँ पे 10 है और ये कितना हो जाएगा आपका 11 9 सा 99। तो अगर ऊपर देखें तो हमारा 3 बाहर आ गया और यहाँ पे 10 और 10 10 to the power 2 ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपका यहाँ पे 1 ही हो जाएगा। 10 to the power 0 विल बी 1, तो ये आपका 3 ही आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं जिसमें आपको डेसिमल में वैल्यू दी होगी एंड व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू और इस तरीके से सोल्यूशन कर लेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक क्वेश्चन और करेंगे हम लोग आज। Question number 32. If p plus q inverse minus 1 into p minus 1 plus q to the power minus 1 equals to p to the power a and q to the power b. This is your question and we have to prove a plus b plus 2 equal to 0. ठीक है, सो व्हाट वी डू, हम लोग इसी चीज को यहाँ पे यूज करेंगे। तो दिस कैन बी रिटन एज 1 अपॉन p प्लस q मल्टीप्लाई बाय 1 बाय p प्लस 1 बाय q दिस इज इक्वल टू व्हाट, p टू द पावर a q टू द पावर b। 1 अपॉन p प्लस q इंटू यहाँ पे pq हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा q प्लस p हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये आपका इक्वल टू आ गया p टू द पावर a q टू द पावर b। इसको जब इनवर्स में सॉल्व करेंगे p टू द पावर माइनस 1 q टू द पावर माइनस 1 दिस इज इक्वल टू p टू द पावर a एंड q टू द पावर b। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे p की पावर माइनस 1 है और इसको कंपेयर करें तो इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। सो ऑन कंपेयरिंग क्या हो जाएगा हमारा p टू द पावर माइनस 1 विल बी इक्वल टू p टू द पावर a। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा q टू द पावर माइनस 1 इज इक्वल टू p टू द पावर b, सॉरी q टू द पावर b। ठीक है, अब कंपेयर करें तो a की वैल्यू माइनस 1 आ गई एंड b की वैल्यू भी माइनस 1 आ गई, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो ऑन सब्स्टिट्यूटिंग व्हाट विल गेट, a प्लस b प्लस 2 इक्वल टू 0 है ना, तो माइनस 1 प्लस 2 ये सब कैंसिल हो गए, दिस इज इक्वल टू 0।
सो दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व। अगर कोई क्वेश्चन हमें मूविंग में भी दिया है तो हम यहाँ पे वैल्यूज को कैलकुलेट करके ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू वी कैन प्रूव दैट कि अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है। वन मोर क्वेश्चन, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। आगे का क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे और इस वीडियो के बाद एक वीडियो और इस चैप्टर का बनेगा जिसमें मिसलेनियस क्वेश्चंस मिला के मैं करूँगा, देन विल बी फिनिशिंग ऑफ विद द चैप्टर। सो द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज 34, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट, स्क्वायर रूट 3/5 टू दी पावर, यहाँ पे आपको दिया हुआ है x + 1 इज इक्वल टू 125/27। ये हमारा क्वेश्चन है। अब अगर हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये स्क्वायर रूट है 3/5 टू दी पावर हाफ ऑफ x + 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 5/3 टू दी पावर 3 है ये, ठीक है। अब हमें ये चीज़ देखना है कि हम कंपेयर नहीं कर सकते अभी, यहाँ 3/5 है, यहाँ 5/3 है, इसको सेम बनाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 3/5 लिखा हुआ है, यहाँ पे x + 1/2 लिख देंगे, इसको हम लोग इन्वर्स कर देंगे तो ये हो जाएगा 3/5 टू दी पावर -3। अब देखिए बेस सेम हो गया, अगर इसका हम 1/, कर दें तो यही चीज़ आ जाएगी। अब देखिए ऑन कंपेयरिंग क्या हो जाएगा, ऑन कंपेयरिंग x + 1/2 विल बी इक्वल टू व्हाट, -3, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, x + 1 विल बी इक्वल टू -6, x की वैल्यू आपकी आ जाएगी -6 - 1, x इज -7। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सो स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। जस्ट गो थ्रू माय वीडियो, इसको जरूर देख लीजिएगा और प्रीवियस वीडियोस भी जरूर देखते रहिए, सो दैट इफ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग द बेसिक ऑफ दिस चैप्टर इट कैन बी क्लियरिफाइड। Rest, you can ask your doubts in the group, you can personally call me, you can text me, I'll be solving your doubts, but first just solve the question then ask, ठीक है। पहले क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और तब क्वेश्चंस को पूछिएगा। थैंक यू फॉर टुडे।